آنے والے زمانوں میں جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، انسانیت مصائب و آلام کی چکی میں پس رہی ہوگی، تو کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو قیامت کے قریب ہونے کی خبر دیں گی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نہایت ہی ظالم اور جابر بادشاہ کا ظہور ہوگا۔ تاریخ جسے سفیانی کے نام سے یاد رکھے گی۔ سفیانی کا ظہور شام کے قلب سے ہوگا، اس کے قدیم اور تاریخی شہر دمشق سے۔ اس کا تعلق بنو امیہ کے خاندان سے ہوگا جو اپنی سرکشی اور ظلم کے لیے مشہور تھا۔ جب سفیانی اقتدار پر قابض ہوگا تو اس کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ وہ لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کر دے گا، زمین پر فساد اور بربریت کا بازار گرم کرے گا۔ اس کی سفاکیت کی کوئی حد نہ ہوگی۔ وہ ماؤں کے پیٹ چاک کر کے ان کے اندر موجود معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کرے گا۔ عورتوں کی عصمت دری کی جائے گی اور مردوں کو ناحق خون میں نہلایا جائے گا۔ بوڑھے اور بچے بھی اس کے ظلم سے محفوظ نہ رہیں گے۔ سفیانی کی فوجیں شہروں اور دیہاتوں میں گھومیں گی اور قتل و غارت گری کا ایسا منظر پیش کریں گی کہ تاریخ بھی کانپ اٹھے گی۔ سفیانی کی طاقت کا اصل سرچشمہ بنو کلب نامی ایک قبیلہ ہوگا۔ یہ قبیلہ شام میں ایک بااثر اور طاقتور حیثیت رکھتا تھا۔ بنو کلب نے ہمیشہ ان حکمرانوں کا ساتھ دیا تھا جو اقتدار کے قریب رہے ہوں۔ ماضی میں بھی جب بنو امیہ کی حکومت تھی تو بنو کلب نے ان کی بھرپور حمایت کی تھی۔ اب سفیانی بھی اسی قبیلے کی طاقت پر بھروسہ کرے گا اور ان کی مدد سے اپنے ظلم و ستم کو جاری رکھے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہمیشہ سے ایک کشمکش رہی ہے۔ ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تھی۔ معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کیا۔ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور اب ایک بار پھر بنو امیہ کا ایک ظالم حکمران سفیانی امام مہدی علیہ السلام کے خلاف صف آرا ہوگا۔ شام اس وقت خانہ جنگی کی لپیٹ میں تھا۔ مختلف دھڑے آپس میں لڑ رہے تھے۔ کوئی مرکزی حکومت باقی نہیں رہی تھی۔ لوگ روزانہ کی بنیاد پر خوف میں جی رہے تھے، اپنے اعزاء کو کھو رہے تھے، غربت و بھوک کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ہر شخص ایک مسیحا کی تلاش میں تھا، خواہ وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ ایسی مصیبت اور پریشانی کے عالم میں دمشق کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک سیرت شخص ظاہر ہوگا۔ وہ اپنی راست بازی اور انصاف پسندی کی وجہ سے لوگوں میں مقبول ہوگا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کی نیکی اور دانائی سے متاثر ہوں گے۔ جب اس شخص کی شہرت بنو کلب تک پہنچے گی تو وہ سمجھیں گے کہ یہی وہ فرد ہے جو ہمارے ملک شام کے حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے اور یہاں امن و امان بحال کر سکتا ہے۔ اس لیے بنو کلب اپنی پوری قوت کے ساتھ اس شخص کی حمایت کریں گے۔ بنو کلب ایک طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا جس کی جڑیں یمن سے نکل کر شام میں پیوست ہوئی تھیں۔ انہوں نے ہر دور میں طاقتوروں کا ساتھ دیا تھا اور اب وہ اس نیک شخص کو اپنا سہارا بنائیں گے۔ بنو کلب کی حمایت سے اس نیک شخص کی طاقت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ وہ لوگوں کو انصاف دلائے گا، مظلوموں کی مدد کرے گا اور معاشرے میں امن و آشتی پھیلائے گا۔ رفتہ رفتہ وہ اتنی طاقت حاصل کر لے گا کہ اپنے حامیوں کے سامنے خود کو بادشاہ تسلیم کروا لے گا۔ بادشاہ بننے کے بعد وہ ایک مضبوط فوج تیار کرے گا اور پہلی بار شام کے دارالحکومت دمشق پر ایک بڑا حملہ کرے گا۔ سخت لڑائی کے بعد وہ دمشق کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا۔ دمشق پر قبضے کا مطلب ہوگا کہ پورا شام اس کے کنٹرول میں آ گیا ہے، لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس شخص کی فطرت بدل جائے گی۔ وہ جو پہلے نیک اور انصاف پسند تھا اب ایک خوفناک ظالم بن جائے گا۔ اس کی پرانی تمام اچھی عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس اور خون کی پیاس صاف نظر آنے لگی۔ اس نے اپنی طاقت کو صرف اور صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سفیانی نے شام میں ایک منظم طریقے سے دہشت گردی کا آغاز کیا۔
उसकी फौजों को हुक्म दिया गया कि वो किसी भी तरह की मुजाहमत को बेरहमी से कुचल दें। शहरों और देहातों में खून की नदियां बहाई गईं। उसने अपने मजालिम की ऐसी मिसालें कायम की जो इंसानियत के माथे पर कलंक का टीका है। एक दिन सुफियानी ने हुक्म दिया कि शहर के तमाम मर्दों को जमा किया जाए और उन्हें तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। बच्चों को उनकी माओं की गोद से छीन कर ज़ब्ह किया गया और औरतों को बेइज्जत किया गया। उसके सिपाही खास तौर पर हामिला औरतों को निशाना बनाते थे। वो उनके पेट चाक करके अंदर मौजूद मासूम बच्चों को बाहर निकालते और उनके सामने ही कत्ल कर देते थे। ये मंजर इतना हौलनाक होता कि देखने वालों की रूह कांप जाती। दिमिश्क की गलियां खून से लथपथ थीं। शहर के बाजारों में लाशों के ढेर लगे हुए थे। हत्ता के 12 दिन तक दिमिश्क की नदियों का पानी खून से रंगीन रहा। कोई उसका रुख न कर सका। हवा में सड़ी हुई लाशों की बू फैली थी और आसमान भी सुफियानी के जुल्म पर रो रहा था। शाम में अपनी हुक्मरानी मजबूत करने के बाद सुफियानी ने इराक की तरफ रुख किया। उसका मकसद था कि वो पूरे अरब पर अपना तसल्लुत कायम कर ले। उसकी फौजें शाम से निकलकर इराक की सरहदों की तरफ बढ़ीं। इराक में भी पहले ही से इंतशार फैला हुआ था। मुख्तलिफ गिरोह आपस में लड़ रहे थे। कोई मजबूत मुज़ाहमत नहीं थी। सुफियानी ने इसका फायदा उठाया। इराक के शहरों को भी सुफियानी ने इसी बेरहमी से फतह किया जैसे उसने शाम के शहरों को फतह किया था। करबला, नजफ और कूफा जैसे मुकद्दस शहर भी उसके जुल्म से न बच सके। उसने वहां भी कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म किया, मुकद्दस मकामात की बेहुरमती की और लोगों की अमलाक को लूटा। इराक में भी खून की नदियां बहाई गईं। लोगों की चीखें और आह बुका आसमान तक बुलंद हो रही थी। सुफियानी का अगला हदफ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा था। वो मुसलमानों के इन मुकद्दस तरीन शहरों पर कब्जा करना चाहता था ताकि वो अपनी हुक्मरानी को मजहबी जवाज फराहम कर सके। उसने ऐलान किया कि वो हरमैन शरीफैन को पाक करेगा और अपनी हुकूमत का ऐलान वहीं से करेगा। उसका ये इरादा मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा फितना था, क्योंकि ये वो मकामात थे जहां से इस्लाम की रोशनी फैली थी। मुसलमानों के दिलों में खौफ भर गया था। उन्हें ये डर था कि कहीं सुफियानी इन मुकद्दस शहरों की भी बेहुरमती न कर दे। लोग अल्लाह पाक से दुआएं मांगने लगे कि कोई नजात देहिंदा आए और उन्हें इस जालिम के चुंगल से छुड़ाए। जब जुल्म जाउर की तारीकी अपनी इंतहा को पहुंच गई और जमीन पर कोई ऐसा शख्स नजर न आता था जो सुफियानी का मुकाबला कर सके, तो ऐन इसी वक्त मक्का मुकर्रमा में एक नूर की किरण फूटी। अल्लाह पाक ने अपने नेक और बरगजीदा बंदे हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जाहिर किया। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर इस वक्त हुआ जब सुफियानी की जुल्म ज़्यादती आसमान को छू रही थी। लोग मायूसी और नाउमेदी के गहरे समंदर में डूब चुके थे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में एक मुत्तकी, परहेजगार और इंसाफ पसंद शख्स के तौर पर मशहूर थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने खास मकाम का इजहार नहीं किया था। एक रात जब वो काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे, कुछ नेक लोग जो पहले से उनके बारे में जानते थे और उनकी आमद का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से बैत करने की ख्वाहिश जाहिर की। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब लोगों ने उन पर जोर दिया और उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म याद दिलाया तो उन्होंने बैत कबूल कर ली। इस खबर ने बिजली की तरह तेजी से अरब में फैलना शुरू किया। लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। वो जानते थे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही वो नजात दहिंदा है जिसका सदियों से इंतजार किया जा रहा है। मक्का और मदीना के लोग जो सुफियानी के खौफ में मुब्तला थे, अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा होना शुरू हो गए ताकि हक और अदल के लिए जंग लड़ सकें। जब सुफियानी को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की खबर मिली तो वो एक बड़ी फौज उनके मुकाबले के लिए रवाना करेगा। सुफियानी को यह खबर आग की तरह लगी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके इस बेपनाह जुल्म के दौर में कोई उसके खिलाफ खड़ा होने की जुर्रत करेगा। उसका गुरूर और तकब्बुर आसमान को छू रहा था और वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को महज एक मामूली मुज़ाहमत समझ रहा था। उसने अपनी सबसे तजुर्बाकार और सफ़ाक फौज को मक्का की जानिब रवाना किया।
इस फौज का मकसद था कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके चंद हामियों को फौरन कुचल दिया जाए, इससे पहले कि वो कोई हकीकी खतरा बन सकें। लेकिन अल्लाह पाक की मदद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के साथ होगी। इसी दौरान मशरिक से खुरासान की जानिब से एक और फौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए निकलेगी। ये खुरासानी फौज सुफियानी की भेजी हुई फौज को बुरी तरह शिकस्त देगी। ये शिकस्त सुफियानी के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। उसका गुरूर खाक में मिल जाएगा। अपनी फौज की शिकस्त की खबर सुनकर सुफियानी गजबनाक हो जाएगा और फौरन एक दूसरी बड़ी फौज तैयार करके खुद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए निकलेगा। इस बार उसका इरादा था कि वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम को नीस्त नाबूद कर दे और इस बगावत को जड़ से उखाड़ फेंके। उसने अपनी तमाम तर ताकत, तमाम वसाइल और अपनी फौज की तमाम तर बेहतरीन यूनिटों को इस आखिरी मारके के लिए इकट्ठा किया। मक्का और मदीना के दरमियान का सहरा, जिसे बैदा कहा जाता है, इस आखिरी जंग का मैदान बनने वाला था। सुफियानी की फौजें मक्का की जानिब बढ़ती चली गईं। उनके कदमों की धमक से जमीन कांप रही थी। उन्हें यकीन था कि कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अल्लाह पाक का फैसला कुछ और ही था। जब उसकी फौज बैदा के सहरा में पहुंची तो अल्लाह पाक का अजाब नाजिल हुआ। जमीन यकदम फटने लगी और एक भूख प्यासी दरार ने सुफियानी और उसकी पूरी फौज को निगल लिया। सुफियानी, उसका गुरूर, उसकी ताकत, उसकी तमाम फौज सब के सब लम्हों में जमीन में धंस गए। ये एक ऐसा मंजर था जो ना तो किसी ने पहले देखा था और ना ही आइंदा कभी देखने को मिलेगा। सिर्फ एक या दो अफराद बच पाए जो इस हौलनाक वाक़ये की खबर बाकी दुनिया तक पहुंचा सकें। उन्होंने कांपती हुई जबानों में सुफियानी की फौज के जमीन में धंस जाने की दास्तान सुनाई, जो दुनिया भर में फैल गई और लोगों के दिलों में अल्लाह पाक की कुदरत का खौफ बैठा दिया। सुफियानी का ये अंजाम इबरतनाक था, जो उसके तमाम जुल्म सितम का मंतिकी नतीजा था। इसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जमीन पर अदल इंसाफ का दौर दौरा करेंगे और दुनिया अमन और सुकून से भर जाएगी। उनकी हुकूमत सिर्फ अरब तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि वो पूरी दुनिया में अदल इंसाफ का परचम लहराएंगे। लोगों के दिलों से खौफ दूर हो जाएगा और हर तरफ मोहब्बत, भाईचारा और हम आहंगी का माहौल होगा। जमीन अपनी बरकतें उगल देगी और हर तरफ खुशहाली होगी। न कोई जालिम होगा, न कोई मजलूम। हर शख्स अपने हुकूक हासिल करेगा और अमन व इत्मीनान से जिंदगी गुजारेगा। ये एक ऐसे सुनहरी दौर का आगाज होगा जिसका इंसानियत ने सदियों से ख्वाब देखा है। हम उम्मीद करते हैं कि सुफियानी का ज़ुहूर, एक हौलनाक दास्तान और इमाम मेहदी का अदल की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी और हमारा काम पसंद आया है तो बराह करम हमारे चैनल के इल्म वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचाने में मदद देती है। हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करें। आपका हर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए कीमती है।